A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed the first chapter of the part A, volume 2, that is an issue of share. And in this chapter, we discussed a lots of the theoretical as well as the practical concepts like issue of share for cash, issue of share for consideration other than cash, accounting treatment related to the calls in arrear and calls in advance, the situation of oversubscription and undersubscription, as well as we discussed the concept of forfeiture of the share, reissue of forfeited share and amount transferred to capital reserve. So after completing a lots of the theoretical as well as the practical concept related to the first chapter of volume 2, that is an issue of share, let's we move to the second chapter of the volume 2, that is in chapter number 8. It is in chapter number 8 of the part A and it is a second chapter of the volume 2. So दोनों पॉइंट से समझते रहिए कि ये 8 चैप्टर है पार्ट A का और दूसरा ये वॉल्यूम 2 का सेकेंड चैप्टर है, क्योंकि पार्ट A will be divided into the two volume 1 and volume 2. So in this chapter, firstly we discuss some of the important theoretical points, that is in what is the meaning of debenture, what are the important characteristics of the debenture, as well as the types of debentures and the difference between the debentures and bonds. And after completing those theoretical topics, thereafter we will move to the practical concepts, the practical questions related to the issue of debenture. So in this chapter we discuss a lots of the theoretical topic. The first topic is the meaning of debenture. Second, the features of debenture. Third, difference between bonds and debenture. And the fourth will be your types of debenture. So one by one, let's we discuss about it. What is the meaning of debenture? What is the feature of debenture? What are the basic difference between the bonds and debenture? One by one. Okay. So the first heading of this chapter related to the theoretical concept, that is in what is the meaning of debenture. In ideal form we can say that debenture is a written acknowledgement. It is a written acknowledgement. It is a written acknowledgement of debt. Acknowledgement of debt taken by company as these are issued under seal of a company. यानी बेसिकली डिबेंचर जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनी इशू करती है अंडर द सील ऑफ द कंपनी के सील के अंडर इशू करती है, यानी इस डॉक्यूमेंट पे कंपनी का सिग्नेचर प्रिंटेड होता है, कंपनी की मुहर लगी होती है।
और ये किस चीज का एक्नॉलेजमेंट होता है? इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ये डेप्ट का एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है, यानी कंपनी ये सर्टिफाई करती है कि मैंने पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर अमाउंट एज अ लोन बोरो किया है। सो इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, यानी एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेप्ट का, यानी कंपनी ये सर्टिफाई करती है कि मैंने सर्टेन पर्सन से सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन लिया है अंडर अ सील ऑफ अ कंपनी, कंपनी के मुहर के अंडर। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स तो 7 फीचर्स गिवन है आपके बुक में, लेकिन इसके साथ साथ मैंने उसको कुछ पॉइंट्स में उसको क्या किया है, शॉर्ट आउट कर दिया। सो सेकंड पॉइंट है आपका फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिबेंचर्स को एक सेपरेट एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और ये सर्टिफाई करते हैं कि वो डिबेंचर्स की अपनी खुद की क्वालिटीज़ हैं, खुद की मेरिट्स हैं। जैसे पहला, फर्स्ट, इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। यानी डिबेंचर जो है एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी अपने आप को ये सर्टिफाई करती है या कंपनी उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करती है कि जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा उसने कंपनी को सर्टेन अमाउंट लोन दिया होगा। सो डिबेंचर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ रिटन, ये कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं होता, ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर्स होल्डर। सेकेंड, इट इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। दूसरा फीचर है इट इज इशूड अंडर सील ऑफ कंपनी। इट मीन्स जो डिबेंचर है वो कंपनी इशू करती है और कंपनी का उस पर क्या होता है, सील लगा होता है। सील का मतलब आपको मैंने कंपनी के डेफिनेशन के टाइम में बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। यानी कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, यानी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी का वो सील अटैच्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट कंपनी का फेक माना जाता है। इसी तरह से जो डिबेंचर है उस पर कंपनी का सील लगा होता है, अगर उस कंपनी का सील नहीं लगा है तो आप ये मान लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट या वो डिबेंचर ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है। तीसरा जो फीचर है, द थर्ड फीचर ऑफ डिबेंचर इज it contain a contract for the repayment, contract of repayment of principal amount, principal sum। यानी कि डिबेंचर जो डॉक्यूमेंट होता है उस पे ये पूरी तरह से क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कंपनी वो लोन जो उसने डिबेंचर होल्डर से लिया है वो कब पे करेगी, उसकी पेमेंट की डेट क्या होगी, कब पे करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो उस पर स्पेसिफाई किए जाते हैं। फोर्थ है मैक्सिमम इशू पीरियड जो होता है ऑफ डिबेंचर वो 10 ईयर होता है, यानी कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। कंपनी ने अगर आज को डिबेंचर इशू किया तो उसका रिडम्पशन यानी उसका पेबैक कंपनी को 10 साल के अंदर करना होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी मिले, अगर इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, in case of infrastructure projects, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई कंपनीज हैं तो सिचुएशन में जो मैक्सिमम इशू पीरियड है वो 30 साल तक हो सकता है।
यानी नॉर्मली कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंगेज्ड है तो वो मैक्सिमम 30 साल के लिए क्या कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं फिफ्थ फीचर्स पे। फिफ्थ फीचर ऑफ डिबेंचर, तो ये पहले जो आपने जितने भी फीचर्स पढ़े हैं, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इन सबको पहले नोट डाउन कर लीजिए। द नेक्स्ट फीचर, फीचर नंबर 5 ऑफ डिबेंचर इज डिबेंचर आर इशूड विथ अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है, डिबेंचर आर इशूड एट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू नो वेरी वेल, जब आप कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर के बदले आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। उसी तरह से अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर के पीछे कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, एनुअली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली कंपनी को एक रिटर्न पे करना पड़ता है, जिसे हम लोग इंटरेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड कूपन रेट। याद रखिएगा हमेशा, हम लोग जनरली उसको इंटरेस्ट जानते हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर के पीछे उसे क्या देना पड़ता है, रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उस इंटरेस्ट को हम लोग कूपन रेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जनरली कंपनी क्या करती है, आफ्टर एवरी 6 मंथ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट made by company, generally made by company after every 6 month। यानी कि जनरली जो कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है वो हाफ ईयरली करती है, हर 6 महीने पे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी डिबेंचर इशू करते वक्त हम ये भी डिसाइड करते हैं कि उसका पेमेंट कब करना है, उसका एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड किया जाता है। साथ ही साथ मैक्सिमम कितने समय के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हैं, 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 साल, और डिबेंचर जब इशू करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करते हैं, जस्ट लाइक अ प्रेफरेंशियल। और जब भी कभी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो वो रेगुलरली टाइम डिसाइड करती है, वो जनरली क्या होती है, 6 मंथ। नेक्स्ट है fund raised by issue of debenture, fund raised by issue of debenture are of long term nature। It means डिबेंचर इशू करके जो भी कंपनी फंड अरेंज करती है, फंड रेज करती है, वो जनरली किस नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म नेचर का। यानी जिसका पेमेंट कंपनी को 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाद करना। आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है कि 2 मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सो डिबेंचर आर पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड आफ्टर 1 ईयर होती है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि डिबेंचर से जो भी हम फंड अरेंज कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, यानी जिसका पेमेंट कंपनी को क्या करना है, आफ्टर 1 ईयर। यानी उससे कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकती है, फाइनलाइज और फुलफिल कर सकती है। और एक चीज़ और भी मुझे बताना था कि डिबेंचर्स के पीछे जनरली कंपनी क्या रखती है, सिक्योरिटीज़ रखती है। तो इसका एक और पॉइंट हो जाएगा, डिबेंचर इज जनरली secured by assets। मतलब जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस डिबेंचर के पीछे कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ भी मॉर्गेज रख देती है, ताकि लोगों को उस डिबेंचर को परचेस करने में कोई हिचक ना हो। क्योंकि यू नो वेरी वेल डिबेंचर जस्ट लाइक अ लोन कैपिटल,
इसका जो फॉर्म होता है वो लोन फंड में होता है, बोरोवर फंड में होता है। तो कंपनी जब भी कोई डिबेंचर इशू करती है तो ये इनिशियल लेके करती है या ये एज्यूम करके करती है कि उसके पीछे हम कोई ना कोई एसेट्स एज अ मॉर्गेज रखेंगे कि अगर कंपनी टाइमली पे नहीं कर पाएगी तो डिबेंचर होल्डर वो एसेट्स लेकर अपना सेटलमेंट करें। लेकिन जो बड़ी बड़ी गुडविल्स कंपनीज होती हैं जिनके पास गुडविल है, उनको डिबेंचर्स के पीछे कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दीज आर द बेसिक difference basic features of the debentures. Now we are moving to the difference between the bonds and debenture. Okay, आप लोगों ने अगर डिफरेंस समझना है बॉन्ड्स और डिबेंचर के बारे में, तो बॉन्ड्स डिबेंचर्स के बारे में हमें कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गया कि डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट है, it is issued under the seal of the company, contract of repayment of principal sum, maximum issue period is 10 years and in case of infrastructure project is 30 years. Debenture are issued at a specific rate of interest which is called coupon rate, and the payment of interest made by the company after every 6 months, and the fund raised by the issue of debenture are of long term nature, and debenture is generally secured by assets. So all 7 points are the very important feature of the debenture, and with the help of these feature we can easily differentiate between the bonds and debenture. So basically आप लोग के मन में रहता है कि सर what is the basic difference between the bonds and debenture. So अगर हम bonds के बारे में समझ जाएंगे कि what is bonds, it is not a James bond, it is a normally bonds. Bonds are similar to the डिबेंचर। अगर कंपनी को डेब्ट फंड चाहिए, बोरोड फंड चाहिए, तो इट कैन इशू द डिबेंचर एज वेल एज इट कैन ऑल्सो इशू द बॉन्ड्स। बट बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिबेंचर से इसलिए डिफरेंस होते हैं बिकॉज बॉन्ड्स आर इशूड एट हेवी डिस्काउंट। Discount heavily discount and redeemed at par or premium. The difference between issue price and redemption price are known as interest. यानी अगर हम सबसे बड़ा डिफरेंस फाइंड आउट करें बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में, सो वी कैन से दैट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर दोनों लगभग सिमिलर हैं, दोनों से ही बोरोड फंड अरेंज करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसा अरेंज करते हैं, बट द डिफरेंस इज डिबेंचर आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। डिबेंचर को हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं। शेयर को सिर्फ पार और प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। लेकिन बॉन्ड के साथ क्या है, बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पे इशू होता है, इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड है। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या है, इसका रिलेशन कूपन से समझिए। कूपन रेट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। जब बॉन्ड को हम जीरो कूपन कह रहे हैं, जीरो कूपन मतलब उस पर कूपन नहीं है, मतलब उस पर इंटरेस्ट नहीं है, यानी बॉन्ड पे हम इंटरेस्ट नहीं देते, तो 6 महीने पे इंटरेस्ट देने की बात ही छोड़ो। मतलब जनरली कंपनी क्या करती है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट नहीं देती, अभी तक ये समझ। और बॉन्ड जो होता है डिस्काउंट पे इशू होता है, डिबेंचर किस पे इशू होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पे भी इशू होता है। यानी कंपनी जब भी कोई बॉन्ड इशू करती है तो डिस्काउंट, मतलब ये बॉन्ड है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, कंपनी ने इसको इशू किया 100 रुपये का, 90 पे इशू, आपने खरीद लिया, और जब कंपनी इसका रीपेमेंट करेगी यानी रिडम्पशन करेगी तो पार या प्रीमियम पे करेगी, यानी कि या तो फेस करेगी 100 रुपये पे या 110 पे। जो डिफरेंस हो गया, इशू प्राइस मतलब 90 रुपये, रिडम्पशन प्राइस मतलब 100 रुपये, तो जो 10 रुपये हो गया उसी को इंटरेस्ट है। यानी कि बॉन्ड डिबेंचर पे कंपनी क्या करती है, रेगुलरली इंटरेस्ट देती है ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर, वेयर एज ऑन द बॉन्ड कंपनी कैन नॉट मेक अ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ। ये जो इंटरेस्ट होता है कंपनी का देने का तरीका बदल जाता है। इंटरेस्ट देती जरूर है, ऑन पेपर नहीं देती, लेकिन देने का तरीका बदल जाता है। कैसे देती है,
कहती है डोंट वरी, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि इन दिस सिचुएशन कंपनी इशूड दिस डिबेंचर इज एट हैवली डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार और प्रीमियम। सो जो डिफरेंस आएगा इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस का, इट विल बी नोन एज अ इंटरेस्ट। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर। So the next topic of today's video, that is in types of debenture. If you are talking about the types or kinds of the debenture, so in the class 11th you can see that the classification of the debenture will be depend on the different parameters, like on the basis of the registration, on the basis of the conversion, on the basis of the redemption, on the basis of the securities. So on the basis of the different parameters you can easily classify the debenture. As well as if you are talking about the types of the debenture, so there are basically 7 types of debenture which have to discuss in the class 12 accountancy. The 7 types of the debenture. The first types of the debenture is registered debenture. Second types of the debenture is bearer debenture. The third type of debenture is secured debenture. Four types of debenture is unsecured debenture. Fifth type of debenture is redeemable debenture. Next is irredeemable of debenture. Irredeemable debentures. वैसे irredeemable of debentures का कॉन्सेप्ट अब लगभग हट चुका है, ओके? Irredeemable debentures. And last one is a convertible debenture. Okay? So there are basically 7 types or kinds of the debenture. Registered debenture, bearer debenture, secured debenture, unsecured debentures, redeemable debentures, irredeemable debentures and convertible debentures. So one by one, when we are talking all the types of the debenture, so these are as follows. The first types of the debenture is registered debentures. Registered debentures are those debentures which are registered with the company's book. यानी जब कंपनी रजिस्टर्ड डिबेंचर इशू करती है, at the time of the issue of the registered debenture, company registered the name of the debenture holder in the register of the company. यानी कंपनी का एक रजिस्टर है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है? कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है और उस रजिस्टर में जो उस डिबेंचर का एक्चुअल होल्डर होता है, ओनर होता है, इट मीन्स द डिबेंचर होल्डर, उसका नाम कंपनी प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेती है। द फैसिलिटी रिगार्डिंग रजिस्टर्ड डिबेंचर इज कि इस डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का रिटर्न सिर्फ उसी बंदे को होगा हु इज द रजिस्टर्ड विद इन द कंपनीज रजिस्टर, यानी जिस बंदे का नाम या जिस पर्सन का नाम उस कंपनी की बुक में मेंटेन किया जाए। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? वो डिबेंचर्स जिनके डिबेंचर्स होल्डर रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड इन कंपनीज रजिस्टर, यानी वो डिबेंचर्स होल्डर जो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी के रजिस्टर, यानी कंपनी के रजिस्टर में इन डिबेंचर होल्डर्स का नाम क्या होता है?
दर्ज होता है और इन्हीं डिबेंचर्स होल्डर्स को ही कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है और रिटर्न के केस में, मतलब अगर मान लीजिए रिडम्पशन करना है तो प्रिंसिपल अमाउंट इन्हीं को पे करे। बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो डिबेंचर्स जिस पे फिक्स नहीं होता कि हु इज द एक्चुअल होल्डर ऑफ सच डिबेंचर, यानी उस डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल का अमाउंट है, कंपनी उसको करती है हु इज द होल्डर ऑफ द कंपनी, हु इज द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। सपोज ये डिबेंचर मैंने खरीदा, आफ्टर सम टाइम मैंने इसको मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर सम ऑफ मनी, तो कंपनी अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर होता तो मुझे को इंटरेस्ट देती, मुझे को प्रिंसिपल रिटर्न कर दिया एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन। बट बियरर डिबेंचर में कैटेगरी चेंज हो जाती है, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है और उसका जो रिटर्न मनी है वो किसको दिया जाता है, हु इज द बियरर ऑफ द डिबेंचर, होल्डर ऑफ द डिबेंचर। सो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सम पेड टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर, यानी कि बियरर डिबेंचर की सबसे खास बात होती है कि इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सम उसे पे किया जाता है जो डिबेंचर का होल्डर, जो उस समय जिसके पास वो डिबेंचर एक्चुअली में है। सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर क्लियर हो गया होगा आपको। सिक्योर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय एनी एसेट्स, यानी जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है, इशू विथ yes assets as a charge, यानी कि सिक्योर डिबेंचर को जब कंपनी इशू करती है तो उसके पीछे एक प्रॉपर एसेट रखती है एज ए चार्ज मतलब मॉर्गेज, कि अगर कंपनी ने उस डिबेंचर का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना एसेट्स क्या करना होगा, उसे देना होगा ताकि वो एसेट्स को बेच के अपना अमाउंट रियलाइज कर सके। तो सिक्योर डिबेंचर आर दो डिबेंचर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ सच डिबेंचर कंपनी टेक्स assets as a charge against such debenture, and unsecured debenture are those debenture which are issued by the company without any assets as a charge, यानी unsecured debentures वो debentures होते हैं जिसके पीछे कंपनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखती। issued without assets as a charge। अब आते हैं रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल की सिचुएशंस। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मतलब रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिनका पेमेंट कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद करती है। सो रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर जिसका पेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड, जिसका पेमेंट कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद करती है। बट इरिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर जिसका पेमेंट कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी कि रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर्स हैं जिनका पेमेंट कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद करती है, यानी एट द टाइम ऑफ द इशू ये डिसाइड हो जाता है कि कंपनी उस डिबेंचर का पेमेंट कब करेगी। और इरिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका रिडम्पशन कंपनी अपने लाइफ टाइम में नहीं करती, उसका रिडम्पशन कब करती है, उसका पेमेंट कब करती है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब कंपनी बंद होती है। इसे हम लोग परमानेंट डिबेंचर भी कहते हैं, परपेचुअल डिबेंचर। एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर जिसपे ये ऑप्शन होता है कि सच डिबेंचर होल्डर कैन बी कन्वर्ट इट्स डिबेंचर इनटू शेयर्स। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिसपे ऑप्शन होता है, ऑप्शन अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट इट्स debenture into shares. It means convertible debentures are those debenture on which the option
available to the debenture holder, option available to the debenture holder to convert its debenture into shares, यानी जिस पे ऑप्शन होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स में ड्यू टू द स्पेसिफिक रीजन. So these are the simple and short explanation of the types of the debenture. So please take a screenshot and please note down all these things in your copy properly. So I hope today we cleared all the things very clearly, and in today's video we almost complete all the important theoretical topics related to the chapter number 2 of the volume 2, as well as the 8th chapter of the part A accountancy, that is an issue of debenture, जिसमें हमने डिस्कस किया what is the meaning of debenture, features of debenture, kinds of debenture, difference between debentures and bonds, as well as next की क्लास में वो डिस्कस करेंगे difference between share and debenture. जो इशू ऑफ शेयर पढ़ा और इशू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों में कैसा डिफरेंस है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल टॉपिक. सो आई होप आज आप लोग को सारी चीज़ें इजीली क्लियर हुई होंगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. टेक केयर.